السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں کنٹینیو کر رہا ہوں اسی کو، تو کوڈریٹک ایکویژن میں نے کہا تھا کوڈریٹک ایکویژن کو سالو کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا بائی کمپلیٹنگ دا اسکوئر میتھڈ، 10 سوال میں نے دیے ہیں، انہیں چیک کریں، جو نہیں ہوتا مجھے بتائیں، میں وہ اس کا پروف اسے سالو کر کے آپ کو بھیج دوں۔ دوسرا میتھڈ ہے بائی کمپلیٹنگ دا اسکوئر میتھڈ۔ بڑی سمپل سی بات ہے، آپ نے بڑی بار پڑھا ہوگا کہ اے پلس بی کا اسکوئر، اے پلس بی ہول اسکوئر از اکول ٹو اے اسکوئر پلس 2ab پلس بی اسکوئر۔ یہ بڑے آپ نے بار بار پڑھا ہوگا۔ اس پہ سمپل یہ ہے کہ اگر یہاں مائنس ہو تو یہ مائنس ہو جاتا ہے، یہ اسکوئر۔ اگر آپ کو صرف یہ دیا ہو کہ یہ اے اسکوئر پلس 2ab، تو اس میں کیا چیز ایڈ کریں کہ یہ پرفیکٹ اسکوئر ہو جائے، تو یہ فائنڈ کرنا یہ جو پروسیس ہے، دس از کالڈ بائی کمپلیٹنگ دا اسکوئر میتھڈ۔ فار ایگزامپل میں اس کی ایگزامپل ایک چھوٹی سی دیتا ہوں۔ آپ کے پاس آ جائے کہ یہ اسکوئر کمپلیٹ کریں، اے اسکوئر پلس 3a پلس کیا، یہ پرفیکٹ اسکوئر ہے، تو بڑا سمپل ہے۔ یہ کمپیئر کریں اس سے، اے اسکوئر کے برابر آ گیا، 2ab جو ہے نا دیٹ از اکول ٹو 3 ہے، یہ 2ab کی جگہ یہاں 3 ہے، ان دونوں کو برابر آپ سمجھ گئے، تو اے سے کٹ گیا، 2b از اکول ٹو 3، تو b آ گیا 3/2۔ تو یہ آ گیا اے اسکوئر پلس 3a پلس بی کی بجائے 3/2، 3/2 کا اسکوئر، اے اسکوئر پلس 2ab پلس بی اسکوئر۔ تو یہ آپ نے 2ab سے اسے کمپیئر کر کے بی نکال لیا، تو اب یہ آ گیا اے پلس بی کا اسکوئر، اے پلس 3/2 ہول اسکوئر۔ دس از کمپلیٹنگ دا اسکوئر، کہ آپ نے آسانی کے ساتھ جو بی ہے پہلے وہ ڈھونڈا ہے کہ کس کے برابر ہے، اور اس کے بعد فار ایگزامپل میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ یہ آپ کے پاس ہے اے اسکوئر مائنس سے، اسے اسکوئر کمپلیٹ کرے، اے اسکوئر کے برابر آ گیا، یہ تو اسی طرح 2ab کی جگہ ہمارے پاس آ گیا ٹھیک، اے سے کٹ گیا، 2b آ گیا 1 کے برابر، b آ گیا 1 کے۔ سمپل ہے، چنانچہ therefore اے اسکوئر مائنس سے پلس 1/2 کا اسکوئر، بی اسکوئر آپ نے لکھ دیا، بی آپ نے فائنڈ کیا تھا، دس از اکول ٹو اے مائنس بی، درمیان میں مائنس تھا اس لیے یہ اے مائنس بی کا اسکوئر۔ اور ایک میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، سمپل والی کا آ جاتا ہے، اتنا لمبا جڑا ہوتا ہی نہیں، یہ آ گیا اسکوئر مائنس 4a پلس، تو اسے تو ویسے ہی آپ اے اسکوئر مائنس 2 انٹو 2 انٹو اے پلس بی اسکوئر، تو یہ دیکھیں اے اسکوئر کے برابر ہو گیا، 2ab برابر آ گیا 2 انٹو 2 انٹو اے سے کٹ گیا، 2 سے کٹ گیا، b از اکول ٹو، دس از اے اسکوئر مائنس 4a پلس 2 کا اسکوئر، دس از اکول ٹو اے مائنس 2 ہول اسکوئر۔ تو دس از کمپلیٹنگ دا اسکوئر میتھڈ۔ بڑی آسانی سے آپ کوئی آ جائے اسے اسکوئر کمپلیٹ کر لیں۔ اب یہ جو ایکویژن ہے اسے کیسے سالو کرنا ہے کسی کوڈریٹک ایکویژن کو بائی کمپلیٹنگ دا میتھڈ، وہ میں کر رہا ہوں۔ یہ آپ کے پاس ایکویژن ہے، اسٹینڈرڈ ایکویژن، اے ایکس اسکوئر پلس بی ایکس پلس سی از اکول ٹو 0۔ You have to solve it by completing the square method۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے، جو کوفیشنٹ ہے ایکس اسکوئر کا اسے 1 آپ نے لانا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، اے ایکس اسکوئر،
ए की बजाय 1 आना है तो डिवाइडिंग बाई ए, डिवाइडिंग बाई ए वी गेट क्या आ गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मान लाना है। अगर ऑलरेडी हो तो फिर तो बात खत्म हो गई, ये स्टेप की जरूरत ही नहीं। दूसरा स्टेप, कांस्टेंट को उस तरफ ले जाना। यहाँ कांस्टेंट क्या है, सी ओवर एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाली टर्म है, ये कांस्टेंट है, ये आगे एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। कांस्टेंट दूसरी तरफ चला गया। अब ये जो पार्ट है ना, इसका आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, तो देखें ये मैं साइन पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे आप कंपेयर करना है। ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स, ए और एक्स बराबर हो गया तो ए इज इक्वल टू एक्स हो गया। 2ab जो है ना वो आ गया बी ओवर ए एक्स के, एक्स तो ए के बराबर है, ये गया 2b इज इक्वल टू बी ओवर ए, बी भी कट गया, सॉरी एक सेकंड कट गया थोड़ा सा, बी ओवर ए एक्स, मैं थोड़ा सा ये कंफ्यूज है और भी कंफ्यूज हो गए, मैं थोड़ा सा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लिखे, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर के बराबर है, 2xy इज इक्वल टू बी ओवर ए एक्स, एक्स और एक्स कट गया, 2y is equal to b over a and y is equal to b over 2a। ये जो y है ये y स्क्वायर b over 2, तो ये b over a x is equal to ये, इसमें ऐड क्या करना है, प्लस b स्क्वायर, तो प्लस ये b over a p over 2a होल स्क्वायर, यहाँ लिख लें एडिंग b over 2a whole square on both sides, b over 2a whole square both sides में, तो ये x plus b over 2a whole square आ गया, this is equal to ये plus तो this is equal to minus c over a plus b square over 4a square। ये b over 2a का मैंने स्क्वायर ले लिया। अब इसमें गौर करें कि ये रकम तो स्क्वायर है, वो स्क्वायर नहीं है, उसे स्क्वायर की शक्ल में किसी तरह करें। एलसीएम इन दोनों का क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। मैंने इससे पहले आपको बताया कई दफा कि आपके पास कोई रकम हो, ये आपके पास x है, आप इसे आसानी से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2, 1/2 का स्क्वायर ले तो पूरा हो गया, ये इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर हो गया, ये x की पावर 1/2 into 2, ये कट गया, ये x ही आ गया। चनाचे कोई रकम हो उसके उसी के स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले सकते हैं। ये आपके पास ये इस तरफ परफेक्ट स्क्वायर है x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर, उस तरफ आपके पास नीचे 2a है जिसका स्क्वायर 4a स्क्वायर है, ऊपर आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट ले लें प्लस माइनस साइन के साथ, और इस सारे का ये स्क्वायर बन, अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, मैं आसानी से इन्हें आपस में
कैंसिल कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर हो तो इसका मतलब होता है एक्स वाई के बराबर है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू वाई आर, ये दोनों स्क्वायर बैलेंस हो गए। एक्स ये आ गया एक्स, एक्स प्लस बी ओवर टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। दोनों तरफ स्क्वायर मैंने बैलेंस कर दिया और ये आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर टू ए, इसे मैं उस तरफ ले गया प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। ओवरऑल एलसीएम ले लें टू ए, ये आ गया माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये जो रिजल्ट आया आपका एक्स इज इक्वल टू इसके बराबर, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये शक्ल मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसे कि ये आपके पास जो रिजल्ट, इसे मिटा रहा हूँ, ये जो रिजल्ट आपके पास आया है ये है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। यही आया रिजल्ट, ये आपके पास। चुनाचे इस रिजल्ट को मैंने दोबारा लिखा, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला फार्मूला दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब एक सवाल इसका करता हूँ, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। कोई सवाल जो किसी तरीके से ना हो रहा हो, क्वाड्रेटिक फार्मूले से लाजमी सवाल, इसे बड़ी अच्छी तरह तैयार। अब मैं कर रहा हूँ एक सवाल, कोई जो आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का सवाल है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के चंद सवाल मैंने दिए हुए हैं। ये सिर्फ 3 सवाल है, मैं कोई एक कर रहा हूँ। ये पहला सवाल है, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लाना, 2 पे डिवाइड कर लें, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बाई 2, 2 पे डिवाइड किया। अब दूसरा कोफिशिएंट जो कांस्टेंट है इसे दूसरी तरफ ले जाए, ये आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, कांस्टेंट दूसरी तरफ चला गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको इसको स्क्वायर कंप्लीट करना है। देखें आपने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस 5x, ये आपको फाइंड करना है। 2xy आ गया माइनस 5x, एक्स और एक्स कट गए, 2y इज इक्वल टू माइनस 5 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 2, ये y की वैल्यू आ गई। तो y स्क्वायर अगर आप ऐड करें तो कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है। तो एडिंग माइनस 5 बाई 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे आपको, एक तरफ नहीं दोनों तरफ आपने ऐड करना है। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x
प्लस ये -5 का स्क्वायर आ गया 25/4 इज इक्वल टू -1/2 प्लस 25/4। ये -5/2 का स्क्वायर मैंने ले लिया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 का 4 हो गया, तो ये आ गया x -5/2 होल स्क्वायर, और ये आ गया 4 एलसीएम -2 प्लस 25 माइनस ये +23/4। इसे मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू x -5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस √23/2 होल स्क्वायर। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर मैंने कहा। अब x, ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गया, x -5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 23/2। ये 23 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। चनाचे अब इसे आगे करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ से बिठा देता हूँ, वो छोटा है थोड़ा सा, तो ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 5/2 प्लस माइनस 23/2। दिस इज इक्वल टू 5, ये 2 एलसीएम आ गया, 5 प्लस माइनस √23। अब ये दो सोल्यूशन आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सोल्यूशन आएंगे, एक है 5 सोल्यूशन सेट में, एक है 5 प्लस 23/2 और दूसरा है 5 -23 का स्क्वायर रूट ओवर 2। ये आपका सोल्यूशन। तो दिस इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसके मैंने 3 ही सवाल किए हैं, थोड़ा सा नजर डाल लें इन पे, ये बहुत कम आते हैं लेकिन बहरहाल इन्हें आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है वो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कैसे है, ये मैंने 8 सवाल लिखे हुए हैं, कोई सवाल पकड़ लें और उसे सॉल्व करें, सब मिलते जुलते हैं, बड़ी आसानी से होते हैं। मैं एक सवाल को कर रहा हूँ। ये एक सवाल है, 3x² -1 इज इक्वल टू 11/12x। इस सवाल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c इज इक्वल टू, तो इसे इस फॉर्म में पहले लाएं, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 12 नीचे और कुछ नहीं है, मल्टीप्लाइंग बाय 12 वी गेट, क्या आ गया जी, ये 36x² -12 इज इक्वल टू 11x। इसे इधर ले आए, ये 36x² -11x -12 is equal to 0. This is standard form. But it's simple here. A is equal to 36, B is equal to -11, and C is equal to -12. ये A की वैल्यू, B की वैल्यू, C, इसे दोबारा चेक कर ले। 12 से जरूर दी 36, 12 और ये 11x हो गया। जब इधर आया तो ये भी माइनस हो गया। अब ये तीनों वैल्यूज आ गई, therefore x is equal to -b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a. This is equal to b. b is minus, दो माइनस मिलकर प्लस हो गया, प्लस माइनस b square 121 minus 4ac 412 into 36, ये आ गया 48 into 36, तो इसे जरा ज़रब दें, 48 into 36 किसके बराबर आएगा जी, 48 into 36, ऐसा मुझे जरा ज़रब दे के देखें,
28 into 36. This is 1728. 1728 over 2a. This is 72. ये माइनस इसमें से कर लें 1 to 1. ये आ गया जी. This is equal to 11 plus minus 1607 over 72. इसे देख ले, अगर सिंप्लीफाई होता है मेरा ख्याल है मुश्किल है वो. तो therefore solution set is equal to 11 plus 1607 square root over 72 or 11 minus 1607 over 72. ये आपके दो आपका रिजल्ट आ गए. तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ये सिंपल आपके पास हो गया. एक सवाल मैं और इसका कर देता हूँ, कोई सिंपल सा सवाल. ये आखिरी सवाल है इसमें. एक्स स्क्वायर ये सबसे अभी सवाल था जो मैंने किया. जो दूसरे सवाल है वो बड़े सिंपल है. इसमें ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. ए आ गया 1, बी 9, सी इज इक्वल टू माइनस 20. एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. This is equal to minus 9 plus minus square root of b square 81 minus 2 minus मिलकर प्लस हो गया 4ac 80 हो गया over 2a simply 2 हो गया. This is equal to minus 9 plus minus 161 over 2. 161 इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता. देख लें कहीं 4ac यही आएगा. दिस इज इक्वल टू सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू minus 9 plus 161 over 2 and minus 9 minus 161 over 2. ये दो उसमें दो रूट इसके आ गए या सॉल्यूशन सेट में दो चीजें आ गई. तो ये सिंपल. दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज. अब सिर्फ साइमल्टेनियस इक्वेशन रह गई हैं, वो मैं कल आखिरी लेक्चर में आपको वो करा दूंगा और उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे क्या होता है. तो सिंपल आज छोटा ही लेक्चर है. एक छोटी सी बात जाते जाते मैं थोड़ा सा आपसे गपशप करूं. कल मेरी डिस्कशन हो रही थी कुछ दोस्तों से कि ये हुब्बुल वतनी क्या चीज़ है, लोग अपनी मिट्टी से प्यार क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए. तो मुझे उस्ताद दामन याद आ गए. लंबी डिस्कशन थी उनके साथ. तो उस्ताद दामन के हवाले से मैंने एक बात कही. उस्ताद दामन पंजाबी के एक शायर थे, फलसफी शायर. बहुत पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन हाईली एजुकेटेड. लिटरेट इतना नहीं थे, तो डिग्री विग्री, लेकिन बड़े रख रखाव, बड़े पढ़े लिखे आदमी. एजुकेशन इज लाइफ स्टाइल. एजुकेशन आपके अच्छे तर्ज जिंदगी का नाम है. तो बड़े अच्छे इनकलाबी किस्म के शायर थे. भुट्टो के दूसरों के खिलाफ उसने बड़ी अजीब नज़में. हिंदुस्तान गए ना तो वहाँ एक नज़म उन्होंने पढ़ी कि अखियां दी लाली दसदी है, रोए तुसी भी और रोए असी भी. इस तरह की नज़म थी जो बड़ी जज्बाती सी, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के हवाले से. तो वहाँ उनका बड़ा इस्तकबाल हुआ. नेहरू से उनकी ज़ाती दोस्ती थी. नेहरू की असल में जो वालदा थी ना वो लाहौर की रहने वाली थी. ये शौकत खानम के इर्द गिर्द छोटे छोटे गाँव हैं कहाँ पे, शादुखुई वगैरह इस तरह, इन्हीं में से किसी गाँव की उसकी नेहरू की वालदा थी. तो नेहरू लाहौर आके रहता रहा और लाहौर में उसके अच्छे दोस्त थे. चनाचे नेहरू जब आया तो ख़ास तौर पर उसने ढूंढा उस्ताद दामन को कि कहाँ पे है. उस्ताद दामन से मिलने उसके कमरे में गया. वो एक लंबी दास्तान है. तो नेहरू ने उसे दावत दी आने की. वहाँ गया तो बड़े लंबी चौड़ी उसका इस्तकबाल हुआ. तो इस्तकबाल के दौरान एक दिन नेहरू ने कहा, उस्ताद दामन बात ये है कि तुम पाकिस्तान में रहते हो
आए दिन किसी न किसी चक्कर में पुलिस तुम्हें पकड़ लेती है, तुम नज़्में कहते हो, कोई ऐसी बातें कहते हो हुक्मरानों के खिलाफ। हुक्मरान हमारे सारे इसी तरह के रहे हैं कि जिनके बारे में जो मर्जी कहना चाहो कहा जा सकता है। अगर आप दयानतदारी से कभी भी उन्हें अगर दयानतदारी की नज़र से देखें तो कभी किसी म्यार पे पूरे नहीं उतरते। चनाचे तुम जो करते हो तो तुम हिंदुस्तान हमारे पास क्यों नहीं आते? हम तुम्हें शरीयत देंगे, वजीफा भी देंगे, बड़े प्यार से रखेंगे, बड़े रख रखाव से रखेंगे। तो उस्ताद अमन हंसने लगे। उसने कहा, नेहरू एक बात याद रखो, रहना पाकिस्तान ही भावें जेल ही रहो। तो ये हुब्बुल वतनी है, एक बंदे का अपनी मिट्टी से प्यार है, और मिट्टी का प्यार बड़ा अजीब है। आप कहीं हो दुनिया में, आप कहीं भी किसी भी जगह, आपकी मिट्टी आपको खींचती है। आप देखें लोग जाते हैं यहाँ से 10-10 साल 20 साल, लेकिन जब जरा उनको बुढ़ापा तारी होता है तो उन्हें मिट्टी याद आती है, उन्हें अपना वतन याद आता है, उन्हें अपने बुजुर्गों की कब्रें याद आती हैं। वो खुद भी चाहते हैं कि अगर आखिरी आरामगाह मेरी बने तो वहीं बने जहाँ मेरे बुजुर्ग बैठे, और वो लौट आते हैं। तो ये हुब्बुल वतनी बड़ी अजीब शय है घर। लेकिन हमारे अफसोस ये है कि एक कौम बनने के लिए कोई एक नजरिया होना चाहिए। अच्छा मुसलमान वो होता है जो अच्छा इंसान भी हो। हम ना अच्छे मुसलमान हैं, ना अच्छे इंसान हैं। जब तक हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, एक दूसरे के लिए दर्द महसूस नहीं करेंगे, हम एक कौम नहीं बन सकते। और अफसोस कि आज यही सूरत हाल है कि हम में कौम वाली बात कोई नहीं। हम ग्रुप हैं, कहीं सिंधी है, कहीं बलोची है, कहीं पंजाबी है, और अगर पंजाबी है तो फिर पंजाबी में सराइकी है, वो पोटोहारी है, इनको वाले पता नहीं कौन कौन से पंजाबी है, सिंध में वो महाजर हैं, पठान है। एक बंदा सारी उम्र यहाँ रहता है, वो कौन सा महाजर है? जो पैदा यहाँ हुआ है, ये मट्टी उसकी है। अब वो महाजर अमलन तौर पे सारे फौत हो गए जो महाजर थे। अब तो सारी वो नस्ल है जो यहीं पली बड़ी पैदा हुई, लेकिन उसके बावजूद अपनी दुकानदारी हम कायम करने को। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कौम में तब्दील कर दे। गुलवतनी का जो जज्बा है वो उसी वक्त उजागर हो सकता है जब हम खुद को एक कौम महसूस करें, और यही हमारी बका के लिए बड़ा जरूरी है। आज का लेक्चर बस आज इतना ही। कल मैंने आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस यानी बैक वक्त दो इक्वेशन जो होती हैं किस तरह काम करती हैं उसके बारे में आपको बताना है, और उसके बाद इक्वेशंस का टॉपिक मैं शायद ख़त्म कर दूं, कोई एक आध और टॉपिक ताकि जल्दी से हम ज़्यादा कवर कर लें। तो हमारे इतना भी नहीं कि आपके लिए बोझ हो, लेकिन इंशाल्लाह माकूल हो जाएगा, जो कहीं आपको कमी महसूस नहीं होगी मैथ के बारे में। तो मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि यू रिंग मी, मुझसे बात करें। तो बात नहीं समझ आती, लेकिन आप में से कोई ना बात करने को तैयार होता है ना कुछ। अगर मैं रवायती अंदाज से इख्तियार करूं तो शायद आपको मुश्किल होगी। मेरी फिर दरख्वास्त है कि आप मुझसे राब्ता करें, फ़ोन मुझे करें, नहीं समझ आती बार बार पूछें, बार बार पूछें। आई एम हियर टू सर्व यू पीपल। माय सन, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।